السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تو پوچھنا حال فقیرہ تھا بائی عریشہ ایپیسوڈ 7۔ 2 مہینے بعد مدثر رحم کرو مجھ پر، خدا کے لیے بس تھوڑا سا دے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا، دیکھو وکی، تم آلریڈی بہت زیادہ لے چکے ہو، اس سے زیادہ لوگے تو مر جاؤ گے، اور ویسے بھی تو مجھے پیسے تو دیتے نہیں، اور تمہارے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو ہے نہیں، مجھے خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میری جان چھوڑو، تم سے تو اتنا نہ ہو سکا کہ مجھے اس سوسائٹی کا مینیجر بنا دو، ویسے تو گنڈے بنے رہتے ہو، اور ہو کیا، کچھ بھی نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری، اپنے باپ کی گنڈا گردی پر اکڑ دکھانے والے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر، آج تمہاری وجہ سے میں مینیجر نہیں بنا، ٹھیک سے ڈرا تک نہیں سکتے تم سوسائٹی والوں کو، اور تمہیں مجھ سے ڈرگس چاہیے، وہ بھی فری کا، تمہارے باپ کا ہے کیا؟ وہ وکی کو دھکا دیتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی اب تو اس سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے دوستی بنا کر رکھتا، یہ تو مدثر بھی سمجھ چکا تھا کہ وکی کے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ واہ جب تمہیں مجھ سے فائدہ ہو رہا تھا، میری وجہ سے تم سب کو ڈرانے میں کامیاب ہو رہے تھے، تب تو میں تمہارا دوست تھا، تمہارا یار تھا، تمہارا سب کچھ تھا، اور اب جب تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تم مینیجر نہیں بن سکتے ہو، پوری سوسائٹی تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہو، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب کہوں گا تم میری ضرورت پوری کرو گے، اور اوقات کی بات کیا کر رہے ہو، میں آج بھی چاہوں تو تمہیں ایک ہی اشارے پر دنیا سے غائب کر سکتا ہوں۔ اب اسے دھمکی دے رہا تھا، تو مجھے غائب کرے کہ دنیا سے اوقات ہے تیری، کیا کر سکتا ہے تو؟ اپنے باپ کے نام کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا، یہ ملک سے پورا شہر صاف اور صرف تجھ سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ سلمان پاشا کا بیٹا ہے تو، ورنہ کوئی پوچھتا تک نہیں تجھے، اور اس پر رعب جما رہا ہے اتنا۔ نہیں ڈرتا میں تجھ سے، تیری اوقات کیا ہے تیری؟ لوزر ہے تو، نامرد کہیں کا، سالہ نامرد، مجھ سے آ کر مقابلہ کرتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے، کچھ نہیں ملے گا، آج کے بعد میری سوسائٹی میں قدم نہیں رکھنا سالے۔ مدثر نے نشے میں اسے دھکا دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ وکی نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے اس کی جانب گرا۔ احساس تو تب ہوا جب اس کے دوستوں نے چلاتے ہوئے وکی کا نام لیا۔ مدثر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے رکھے شیشے پر گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ مدثر کے ہاتھ پیر بری طرح سے پھول گئے، اور یہی حال باقی اس کے دوستوں کا بھی تھا۔ ایک دوست نے ہمت کر کے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس نے مدثر کو بری خبر سنائی۔ مدثر اپنے آپ کو لے کر بہت گھبرا گیا، کیونکہ اسے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گناہ ہوا تھا، وہ کسی کا قاتل بن چکا تھا، اب تو سلمان پاشا نے اس کی جان لے لینی تھی۔ سلیمان پاشا اپنے بچوں کو ہر غلط کام سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، جہاں بیٹی کو آزاد خیالی نے آ گھیرا، وہیں بیٹے کو نشے نے بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی وجہ سے آج وہ اپنی موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ سلمان پاشا کو اپنے ہی گناہوں کی بہت بڑی سزا ملی تھی، جہاں وہ پورے شہر پر گنڈا گردی سے حکومت کیے ہوئے تھا، وہیں اپنے بچوں میں اس کی جان تھی جن کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور اب جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کا بیٹا نشے کی حالت میں مدثر نامی آدمی سے مارا گیا، تو مدثر کی موت تو آنی ہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا عارف، کسی کو پتا تو نہیں چلے گا کہ یہ میرے ہاتھوں سے مرا ہے؟ مدثر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تم گھبراؤ نہیں مدثر، اس طرح سے ڈرتے رہو گے تو یقیناً ہم سب لوگ پھنس جائیں گے، دیکھو اس کی لاش کو حنان کے ایریا میں پھینک آئیں گے، مینیجر وہ ہے، سب کچھ اسی نے ہی سنبھالنا ہے، اب اس پر الزام لگتا ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی تو حنان نے کہا تھا کہ اگر اس نے اس کے ایریا میں پاؤں بھی رکھا تو اسے جان سے مار دے گا۔ ارے ہم پر شک بھی نہیں جائے گا، ہم تو کہیں گے ہم تو اس سے ملے ہی نہیں کل، اور اس کی لاش کو اس کے ایریا میں پھینک آتے ہیں، وہ جانے اور سلمان پاشا جانے، ہمارا نام بھی کہیں نہیں آئے گا، اور ہم تو ویسے بھی اس کے دوست ہیں، ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا، عارف نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اندر سے سب ہی ڈرے ہوئے تھے، یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی کہ شہر کے سب سے بڑے گنڈے کے بیٹے کا قتل ہونا، اب تو قیامت تو ضرور آئے گی۔ سلمان پاشا اس طرح سے خاموش تو ہرگز نہیں بیٹھے گا، وہ جو اپنے بیٹے کو ہر بری عادت سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل ہو جائے اور وہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے؟ لیکن اب جو بھی کرنا تھا
करना था। वो दोनों विकी की लाश को उठाकर एरिया में फेंक कर आए थे। देखिए हनान साहब, लाश आपके एरिया से मिली है और आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो यहाँ पर दोबारा नजर आए तो आप उनसे जान से मार देंगे। पहले भी आप लोग हाथापाई और लड़ाई कर चुके हैं और कानून का शक आपकी तरफ जा रहा है। वो सुबह से हनान को बुरी तरह से घेरे हुए थे। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने कुछ किया नहीं है और ना ही मुझे इस सब का डर है। डरता तो वो है जो गुनहगार हो। मेरा इस सब से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन ये कत्ल मेरे इलाके में हुआ है तो मैं इसका ज़िम्मेदार ज़रूर हूँ और मैं आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन आप जिस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। फिलहाल आपके पास कोई सबूत नहीं है मुझे मुजरिम ठहराने के लिए, हनान ने समझदारी से कहा। देखिए हनान साहब, सबसे पहली बात यह है कि आपके धमकी आपने उन्हें दी थी और दूसरा, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि सलमान पाशा का बेटा है। सलमान पाशा कौन है ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी तारुफ की मोहताज हो तो वो है नहीं। सलमान पाशा अपने तरीके से इसके कातिल तक पहुंचे। बेहतर है कि आप इकरार जुर्म कर ले, वरना सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा आपके पास। वो उसे डराते हुए बोला। यकीनन सलमान पाशा के टुकड़ों पर बिकने वाला एक गद्दार था। हनान सिकंदर खान ने भी कभी पछताना नहीं सीखा और जहाँ मेरी गलती हो वहाँ मैं अपने जुर्म को कबूल कर लेता हूँ। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया और बेहतर है कि आप सलमान पाशा की ठोस जमाना छोड़ दे। आप अपने शक की बुनियाद पर पिछले 24 घंटे से मुझे यहाँ बिठाए हुए हैं और शक की मुद्दत बस इतनी ही होती है। तो मैं अब जा रहा हूँ अपने एरिया में। अगर इसमें मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। पिछले 24 घंटे से यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठा उनका शक दूर करने की कोशिश कर रहा था। न जाने कौन था वकास पाशा का कातिल, कौन था उसका कौन था उसका कातिल जिसका इल्ज़ाम उसके सर पर लगाया गया था। उसने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसके एरिया में दोबारा नजर आया तो वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे कत्ल कर देगा। और बहुत सारे वक्त से तो हनान ने उसे देखा तक नहीं था। मामा और बाबा 2 माह के बाद अगले हफ्ते पाकिस्तान आने वाले थे। वो और आशी तो उनकी वापसी पर सरप्राइज में उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। और अचानक विकी की लाश मिली, वो भी उसी के एरिया से, जिसका इल्ज़ाम भी उसी के सर पे आ चुका था। वो उन दोनों के आने से पहले पहले ही उसके इस केस को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन शायद अब ये केस लंबा चलना था। सलमान पाशा के गुस्से और दुख की कोई इंतहा न थी। अपने जो इकलौते बेटे की लाश को देखकर वो गुंडानुमा इंसान भी टूट कर बिखर चुका था। दुनिया के सामने जिंदा कहलाने वाला इंसान आज बहुत बुरी हालत में अपने बेटे की लाश पे तड़प रहा था। पाशा को मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के कातिल से। वो अपने बेटे की लाश को देखकर जिस तरह से तड़प रहा था, वैसे ही उसका खून खौल रहा था अपने बेटे के कातिल को जान से मार देने के लिए। वो हनान के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर ठीक इकट्ठी कर चुका था। उसके बेटे को धमकी दी गई थी, ये भी वो जान चुका था। मुदस्सिर और आरिफ उस वक्त पाशा के दाएं बाएं खड़े उसके दुख में बराबर के शरीक हो रहे थे, ये जानते हुए भी कि अगर उसे पता चल गया कि उसके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के सामने खड़े यही 2 लड़के हैं, तो वो उन्हें मौत की घाट उतारने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। और इस वक्त हनान को फंसाने और इस केस से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जबकि सलमान पाशा अपने बेटे के कातिल को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो चुका था। उसने सोच लिया था वो हनान को ऐसी मौत देगा कि वो तड़प कर मरेगा। जिस तरह से उसने उसके सबसे अजीज हस्ती को उसकी ज़िंदगी से दूर कर दिया, इसी तरह से वो भी उसे तड़पने पर मजबूर कर देगा। जबकि दूसरी तरफ हनान उसके मुकम्मल तौर पर अपना हाथ निकाल चुका था। सिर्फ शक की बुनियाद पर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कि हनान का बस इतना ही कहना था कि वो इस केस में मैनेजर होने के नाते शामिल है और वो हर मुमकिन तरीके से मदद भी करेगा, लेकिन कोई भी उसे झूठे केस में नहीं फंसा सकता। आशी बहुत परेशान थी। वो तो मामा बाबा को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन हनान ने उसे समझाया कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जिस पर मामा बाबा को परेशान किया जाए। अगले हफ्ते तक वो लोग वैसे भी यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें परेशान करने की क्या ज़रूरत है। उसकी परेशानी को वो समझ रहा था और आजकल तो वो ज़्यादा ही घबराई हुई थी। और उसकी उल्टी सीधी बात तो हनान को गुस्सा दिला देती थी।
और फिर जब उसकी बातें सुनकर वो उसे डांटता था तो उसका रोना धोना और मामा बाबा से उसकी शिकायत शुरू हो जाती, जिस पर हनान बेबस हो जाता। हाँ, लेकिन गुस्सा भी बहुत आता था। आशी, तुम तैयार होना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो लोग आ गए हैं, शायद दरवाज़ा बज रहा है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम बिल्कुल तैयार रहना। वो उसे कहते हुए दरवाजे की तरफ भागा था, जबकि आशी मेज़ पर केक रखकर तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। हनान ने दरवाज़ा खोलते हुए अपने माँ बाप को सरप्राइज़ देना चाहा, लेकिन सामने खड़े शख्स ने बिना उसे बोलने का मौका दिए रॉड उसके मुंह पर दे मारा और वो इस हमले से संभल नहीं पाया था, इसीलिए दूर जाकर ज़मीन पर गिरा। लेकिन हैरत से आने वाले उस शख्स को देख रहा था, जो न जाने क्यों आते ही उस पर यूं जारहाना वार कर रहा था। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के बाद लगातार वो उसे मारता ही चला गया। थोड़ी ही देर में हनान बुरी तरह खून से रत जमीन पर पड़ा था। अचानक होने वाले हमले ने उसे बौखला कर रख दिया था। आखिर क्यों वो शख्स उसे मार रहा था? आखिर क्या दुश्मनी थी उस शख्स की हनान के साथ? जबकि इस हमले पर आशी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन उस शख्स ने उस मासूम पर भी रहम न किया। अगले ही लम्हे वो उसी रॉड से एक धक्का आशी को भी मार चुका था। वो भी दूर जाकर जमीन पर गिरी और सर पर चोट लगने की वजह से वो चंद ही लम्हों में बेहोश हो चुकी थी। हनान चिल्लाया था। वो बहुत हिम्मत करने के बाद उठकर आशी की तरफ आने की कोशिश करने लगा कि उस शख्स को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जब भी उठने की कोशिश करता तो वो रॉड से बुरी तरह से मारकर फिर से ज़मीन बोस होने पर मजबूर कर देता। हनान को समझ नहीं आ रहा था कि उस शख्स के साथ दुश्मनी क्या है, और इतनी मार खाने के बाद उसमें हिम्मत भी ना बची थी इससे वजह पूछने की कि उसके गुंडों ने हनान के हाथ पैर बांध दिए। उसे ज़मीन पर बैठाया उसके सामने खड़ा था। फिर उसने हनान के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊंचा किया था। तुमने मेरे बेटे को मारा, क्या सोचा था इतनी आसानी से बच जाओगे? तुमने मेरे बेटे को मारा और मुझे तड़पने पर मजबूर किया। अब तुम तड़पोगे। तुमने मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली और मुझे जीने पर मजबूर कर दिया। अब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा। मैं तुमसे तुम्हारे जीने की वजह छीन लूँगा और मैं तुम्हें जीने पर मजबूर कर दूँगा। तुमने कभी बादशाह के बारे में नहीं सुना ना? बादशाह हूँ मैं, जो लोगों की कमज़ोरियों की को अपनी ताकत बनाता है। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारी सारी कमज़ोरियों को देखा, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है तुम्हारी बीवी। तुमने मुझसे मेरी जान छीन कर मुझे कमज़ोर कर दिया ना। अब मैं तुमसे तुम्हारी कमज़ोरी, तुम्हारी जान छीन लूँगा। देखो, मैंने कुछ नहीं किया और तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। आशी बेकसूर है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे को क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारे बेटे के कातिलों को ढूंढने के लिए, लेकिन प्लीज़ आशी को कुछ मत करना। वो उसे आशी की तरफ रॉड ले जाते देखकर मजबूरी में उसकी मिन्नतें करने लगा। वो आशी पर रिस्क कभी नहीं ले सकता था। अगर यहाँ उसकी जान जाती है तो उसे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अपनी जान की जान जाते कैसे देखता? नहीं हनान सिकंदर खान, पाशा का एक ही उसूल है, जान के बदले जान। तुमने मेरे बेटे की जान लेकर मुझे बेजान कर दिया, और मैं तुम्हारी जान लूँगा। वो आशी के सर सर को रॉड से वार करते हुए सच में उसे बेजान ही तो कर गया था। हनान रोया था, तड़पा था, गिड़गिड़ाया था, मिन्नतें की थी, पैर पकड़े थे, लेकिन उस सफाक शख्स को रहम ना आया। उसे तो आशी की उम्मीद से होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तो हनान को ख़त्म कर देना चाहता था। आशी को उसी की आंखों के सामने बेदर्दी से कत्ल करके उसने हनान को भी जीने के लायक नहीं छोड़ा। वो जो अपनी तरफ से हनान को भी ख़त्म करके गया था, लेकिन 2 माह कोमा में रहने के बाद हनान को होश आया था, तो वो एक बार फिर से तड़प उठा। वो अपनी आशी की आखिरी रसूमात अदा नहीं कर पाया था। अब हाल आकांक्षा आन को आकांक्षा आन को सुनते हुए उनको सुनते हुए खुद भी रो रही थी। क्या कुछ नहीं बीती थी उस शख्स पे, और वो लड़की जो उस शख्स की मोहब्बतों के लायक थी तो उस शख्स की मोहब्बतों के हकदार थी। वो तो न जाने कितने वक्त से हनान की मोहब्बतों के साथ मौत की गहराइयों में उतर चुकी थी। आकांक्षा के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। वो तो बस उन्हें सुन रही थी, उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। मरियम पास खड़ी रो जा रही थी, अपनी बेटी की मौत की दास्तान सुनाते हुए। उनकी अपनी आंखें भी नम थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसे सारा सच बता रही थी। हम सबको डर था कि हनान को वो शख्स दोबारा मारने ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि हमारा हनान अभी ज़िंदा है। इसीलिए हम सब ने उसे अपने रिश्तों की कसम देकर यहाँ से हमेशा के लिए पेरिस भेज दिया। वो आशी को इंसाफ दिलाना चाहता था, उस शख्स को सज़ा दिलवाना चाहता था, लेकिन हम सब ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया।
हम अपनी बेटी खो चुके थे, बेटा नहीं खोना चाहते थे। आशिक की मौत तो उससे बिन मौत मार रही थी, लेकिन इससे मज़ीद मरते हुए हम सब उसे नहीं देख सकते थे। इसीलिए उसे यहाँ से 1.5 साल पहले ही हमने पेरिस भेज दिया था। दूर ही सही लेकिन ज़िंदा है, बस इसी सहारे पर उसके माँ बाप भी जी रहे हैं। तुम्हें यहाँ देख कर दुख नहीं हुआ? मुझे पल की खुशी हुई मुझे बल्कि खुशी हुई है ये सोच कर कि हनान की ज़िंदगी में फिर कोई आएगा उसे फिर से जोड़ने के लिए। लेकिन तुम तो इतनी कम हिम्मत हो कि उसकी शादी के बारे में सोच कर ही तुम यहाँ से जा रही थी। इसीलिए सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूँ। अब चाहो तो यहाँ रुको, वरना चली जाओ। अगर तुम्हारे अंदर एक बिखरे हुए शख्स को समेटने की हिम्मत है तो यहाँ रह सकती हो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहते हुए उठकर अंदर कमरे में बंद हो गई, जबकि मरियम वहीं बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अम्मी जान, प्लीज़ अपने डर को कंट्रोल कर ले। अब मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है। सलमान पाशा उस वक्त जेल में है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज़ अब इस तरह से डर डर कर जीना ख़त्म कर दे। मैं बिल्कुल महफूज हूँ सलमान पाशा से। आप मुझे अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है। वो सुबह बाहर जाने लगा तो अम्मी ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सलमान पाशा अब उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा। उनका यही डर तो उसे पाकिस्तान आने नहीं दे रहा था। नहीं बेटा, जब तक मरियम की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से वापस पेरिस नहीं चले जाते। तुम कहीं मत जाओ। अपनी बेटी को खोकर बेटा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आशी को याद करते हुए उनकी आंखें नम होने लगी और वो बेबस होकर उन्हें अपने सीने से लगाए समझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कब तक समझाता, उनका ये डर उन पर हावी था। खाला ने रात को ही उसके बाबा को फ़ोन करके बता दिया था कि वो पाकिस्तान आई हुई है। ये कोई इतनी आम सी बात नहीं थी, लड़की ज़ात का मामला था। नीलम और आकांक्षा की ये प्लानिंग खाला को अच्छा खासा गुस्सा दिला चुकी थी। नीलम और आकांक्षा को ऐसे नाजुक मामलात की समझ ही नहीं थी, जिसकी वजह से खाला को गुस्सा आया और खाला ने उनके बाबा को फ़ोन करके पाकिस्तान में बता दिया कि आकांक्षा इस वक्त पाकिस्तान जा चुकी है। रात को नीलम ने उसे फ़ोन करके ये सब कुछ बताया था। उसका घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये बात तो वो भी समझती थी कि अगर वो घर जाएगी तो यकीनन ताई ने किसी के साथ भी पकड़कर शादी कर देनी थी। उनको तो बहाना चाहिए था बाबा के कान भरने का। और यहाँ जब से उसे भी हनी की ज़िंदगी के बारे में पता चला था, उसका तो एक पल को भी कहीं आगे पीछे जाने को दिल नहीं करता। इस वक्त भी वो हनी के साथ ही बाहर जाने का इरादा रखती थी, लेकिन वो तो उसे मुंह तक नहीं लगा रहा था। वो जो बहुत सारी उम्मीदें लेकर पेरिस से हनान के पीछे यहाँ आई थी, वो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब वो हनान से कोई भी उम्मीद नहीं रखती थी, बस उसे अपने आप पर यकीन था कि वो उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन कल हनी ने उसे कहा भी था, तुम्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है आकांक्षा। अब तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं। बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मेरे पीछे आने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी मेरी आशी से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती है। मेरी ज़िंदगी में आशी की जगह कोई नहीं ले सकता, और यही हकीकत है। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और इस सब के बाद भी उसे एक ही जवाब सुनने को मिला था, हनी, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मांगती, और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। और उसका ये जवाब सुनने के बाद हनी ने उससे बात करना ही छोड़ दिया था। इस वक्त भी वो कहीं जाने वाला था। उसके जाने के बाद सोसाइटी को नया मैनेजर तो मिल गया, लेकिन उसके माँ बाप को एक बेटे की ज़रूरत थी। आरिफ और मुदस्सिर के झगड़े में आरिफ ने सलमान पाशा के सामने मुदस्सिर की हकीकत ला कर रख दी थी, और उसे ये भी बता दिया कि मुदस्सिर ही उसके बेटे का कातिल है। सलमान पाशा जो अपनी बेटी सानिया सलमान पाशा के अचानक खुदकुशी करने पर टूटा बिखरा हुआ था, मज़ीद टूट गया उसकी बेटी, जो किसी की मोहब्बत में बुरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सलमान पाशा ने अपनी बेटी की इस जिद को देखते हुए उस आदमी का भी कत्ल करवाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसकी बेटी ने खुद अपनी जान ले ली और उसके बेटे का कातिल हनान नहीं बल्कि मुदस्सिर निकला। इस खबर ने उसे हिलाकर रख दिया, और फिर उसके हाथ से अगला कत्ल मुदस्सिर का हुआ था। उसने मुदस्सिर का कत्ल छुपा कर नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के सामने किया था, जिस पर सोसाइटी उसके खिलाफ गवाह बनकर उसे थाने में पहुंचाने में कामयाब हो गई। वो उम्र कैद की जेल काट रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी दहशत न सिर्फ सोसाइटी बल्कि उसके वालिदैन के दिल में भी बनी हुई थी। और यही वजह थी कि वो लोग उसे वापस पाकिस्तान नहीं आने दे रहे थे। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो सिर्फ अपनी माँ बाप के बेजा डर की वजह से उनसे दूर रहा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद उसकी 4 माह की शादीशुदा ज़िंदगी की यादें थी, जिनमें वो तड़प कर रह जाता।
काशी की यादों से दूर जाने के लिए इस इलाके से दूर जाना था। वो पेरिस तो चला गया, लेकिन उसकी यादें उससे दूर ना हुई थी। उसका दिल आज भी उसी के नाम पर धड़कता, जो उससे दूर मिट्टी में जा सोई थी। आशी की अचानक मौत ने मरियम के दिल में भी हिम्मत जगाई, और वो भी अपने हक के लिए लड़ गई। उसने अपने ताया के सामने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो उमर से शादी नहीं करेगी और ना ही उन लोगों का इससे कोई ताल्लुक है। उसके बाद ज़्यादा तो कुछ भी ना होता, बस ताया उनसे हमेशा के लिए मुंह फेर गए। ऐसे रिश्तों से रिश्तों का ना होना ज़्यादा बेहतर था। शायद यही वजह थी कि मरियम आज अपनी मर्जी से अपने पसंद के लाइफ पार्टनर को चुन चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी हो रही थी, जिससे वो बहुत खुश थी। बेटा, तुम एक बार अपने बाप से बात तो कर लो ना। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने बाबा को बता दो कि तुम पाकिस्तान में एक महफूज जगह पे हो, खाला ने उसे समझाते हुए कहा। खाला, क्या हो गया है आपको? क्या आप मेरे पापा को नहीं जानती? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो 2 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे लेने आने में। उन्हें कुछ भी नहीं बता रही मैं, और खुदा के लिए आप भी उन्हें कुछ मत बताइएगा। और हनान के बारे में तो कुछ भी नहीं, मिन्नतें कर रही थी। उनका आकांक्षा, वो तुम्हारे बाबा है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है बेटा। इस तरह से जवान जहान लड़की पाकिस्तान में कहाँ चली गई, ये सोच ही उन्हें पागल कर रही है। और तुम क्या बचकाना हरकतें कर रही हो, और ऊपर से घर का कोई बड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी ताई न जाने उन्हें क्या क्या बता चुकी होगी। खाला ने परेशानी से कहा। आप परेशान ना हो, ताई का तो काम है बाबा को मेरे खिलाफ करना, और आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी आप कैसे कह सकती है कि यहाँ कोई बड़ा नहीं। हनी की सास एक बहुत अच्छी औरत है, और उन्होंने मुझसे अच्छी की उम्मीद है। मुझे उनसे अच्छे की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि मैं हनी की ज़िंदगी को संवार सकती हूँ, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस ला सकती हूँ जो तकदीर ने उससे छीन ली है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए उसे अपना बनाने का, उसे अपनी ज़िंदगी में लाने का। प्लीज़ खाला, मुझसे ये मौका ना छीने। शायद अब उसके बगैर रह नहीं पाऊंगी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है इस दुनिया में कोई तो है जिसे मेरे लिए भेजा गया है, जिसे मेरे लिए बनाया गया है। मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आज मैंने उसका साथ नहीं निभाया, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाई, तो फिर वो कभी मेरा नहीं होगा। मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे पता है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है, बहुत कुछ सहा है उसने। खाला, उसे भी हक है खुश रहने का, और मैं उसकी खुशियाँ वापस लाऊंगी। मैं उसे ज़िंदगी की हर वो खुशी दूंगी जिसके लिए वो तड़पा है। मैं उसके लिए उसकी ज़िंदगी से उसकी आशी तक की कमी को पूरा करूंगी। खाला, मैं उसकी आशी बनूंगी। वह आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने दिल की बात बता रही थी, जबकि हमेशा की तरह खाला उसकी ज़िद के सामने बेबस हो गई थी। अपने एरिया में कदम रखते ही उसे अपने बचपन से लेकर जवानी तक का एक एक कदम याद आया था जो उसने यहाँ पर गुजारा था। वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था जब रास्ते में अचानक उसे मुदस्सिर के बाबा नजर आए, हाथ में तस्बीह पकड़े हुए। शायद वो अभी अभी मस्जिद से निकले थे। बेटे की जुदाई ने उन्हें अल्लाह की राह पर लगाया था। वो जो दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि बेटे को सोसाइटी का मैनेजर बनाकर इस सोसाइटी के पैसे पर अय्याशी करने का इरादा रखते थे। लेकिन इसी बेटे की जुदाई ने उन्हें सही और गलत की पहचान सिखा दी थी। उसे अपनी तरफ आता देखकर उनकी आंखों में एक चमक थी, जबकि दोनों हाथ बांधे वो माफी के अंदाज में उसके सामने खड़े थे। उसने आगे बढ़ते हुए उनके दोनों हाथ थाम लिए, जबकि उनकी नम आंखों को देखते हुए उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, और उनके सीने से लगते हुए ही वो टूटा हुआ बाप दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मेरे बेटे ने तुम्हें तबाह कर दिया हनान, मुझे माफ़ कर दो। मेरे बेटे को माफ़ कर दो। इस दुनिया से जा चुका है वो, उसकी गलती को माफ़ कर दो बेटा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी आशी वापस ला कर नहीं दे सकता, लेकिन अपने बेटे की गुनाहों की माफ़ी तो मांग सकता हूँ। वो रोते हुए कह रहे थे, जबकि उन्हें अपने सीने से लगाया हनान खामोशी से उन्हें सुन रहा था। बस कर दे अंकल, शायद आशी की ज़िंदगी के इतने ही दिन थे। मुझे मुदस्सिर से कोई गिला नहीं, जा चुका है वो। उससे गिला करके मुझे क्या हासिल होगा? मुझे आपसे भी कोई गिला नहीं, और ना ही मैंने अपने दिल में आप दोनों के लिए किसी किस्म की नफरत रखा है। जो हुआ सो हो गया। वो उन्हें खुद से अलग करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा, जहाँ दरवाजे पर उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन वो रोना नहीं चाहता था। उसकी माँ बीमार थी, और उसके सामने रोकर वो उसे मजीद बीमार नहीं कर सकता था।
उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर अपने कमरे की तरफ आ गया। आज 1.5 साल के बाद अपने बेटे को देखकर वो एक बार फिर से जी उठी थी। जिंदगी में अचानक होने वाले हादसा जिंदगी को बुरी तरह से बदल देते हैं, और सिर्फ ऐसे हादसा की वजह से हम जिंदगी को दोबारा ऐसा नहीं बना सकते जैसे हमारी जिंदगी कभी हुआ करती थी। शायद जिंदगी इसी का नाम है। उसने कमरे में कदम रखा तो आशी बेड पर गहरी नींद सो रही थी। उसने एक नज़र मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा तो उसके माथे पर बोसा देते हुए सोफे पर आ बैठा। उसे सोसाइटी के कुछ काम करने थे। वो फाइलों में सर दिए कब से उसके चेहरे पे आए गुस्से को नोट कर रहा था, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में मसरूफ रहा, जबकि आशी आंखें बंद किए हुए गुस्से से खौल रही थी। लेकिन सोने की एक्टिंग भी करनी थी। पिछले 4 दिन से सोसाइटी के कामों की वजह से वो उस हद तक मसरूफ था कि आशी को देखने का वक्त नहीं मिलता। जब भी रात को घर आता तो आशी उसे सोए हुए मिलती। वो भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि इस सोसाइटी के काम खत्म करने के बाद उसका इरादा उसे बाहर घुमाने घुमाने लेकर जाने का था। वो अपने काम में मसरूफ था कि उसने एक नज़र आशी की तरफ देखा जो बेड से गिरने ही वाली थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसे सीधा बेड पर सीधा करके लेटाया। फिर उसके चेहरे को देखा, शायद वो सच में सो चुकी थी। वो वापस अपनी जगह पर आकर काम करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आशी के हाथ से एक बार फिर से ज़मीन पर नजर आया। आशी कितनी लापरवाही से सो रही हो तुम, वो कहते हुए फिर से उठकर उसके पास आया। उसका हाथ बेड पर रखा और करवट के बल उसे दूसरी तरफ करते हुए उसे सीधा कर दिया, जबकि वो अभी गहरी नींद में थी। या तो आज वो उसे तंग कर रही थी, या शायद नींद में वो खुद भी बेखबर थी। वो सोफे पर आकर बैठा और एक बार फिर से अपना काम करने लगा, जबकि आशी दूसरी तरफ चेहरे पर शरारत लिए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से करवट ली, एक बार फिर से ज़मीन पर गिरने लगी। जानती थी कि वो उसे गिरने नहीं देगा। अभी वो फिर से ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि उसे एक बार फिर से थाम लिया गया, लेकिन इस बार उसने उसकी शरारतों पर ब्रेक लगा दी थी, क्योंकि वो खुद ज़मीन पर बैठते हुए उसकी सारी गिरने की जगह को कवर कर चुका था। शायद उसकी शरारत को समझ गया था। आशी का अच्छा खासा मूड खराब हो गया था, मतलब अब वो उसे तंग भी नहीं कर सकती थी। वो मुंह बसोर कर सोने की कोशिश करने लगी, जबकि उसकी शरारतों को समझते हुए मुस्कुराते हुए अपने काम सर अंजाम देने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने गले में उसकी बाहों का हार महसूस हुआ। आप बिल्कुल भी अच्छे शौहर नहीं है, वो उसकी गर्दन में चीटी काटते हुए बोली। अच्छा, जो शौहर अपनी बीवी को शरारत नहीं करने देता, क्या वो अच्छा शौहर नहीं होता? वो उसे देखकर बोला, जिस पर वो जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी। और वो शौहर जो शरारतें कितने देने के साथ साथ करने देने के साथ साथ करता भी है, वो कैसा होता है? वो अपना काम बंद करते हुए बेड पर आकर उसे गुदगुदाने लगा, जबकि वो उससे बचती खिलखिलाते हुए उससे दूर होने लगी। हैरान दरवाजे पर खड़ा हो कि कब से अपनी माजी की खूबसूरत लम्हात को याद कर रहा था। उसकी आंखें नम होने लगी। कितनी खूबसूरत यादें थी उसकी, जो अब उससे दूर हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आकर बेड पर बैठ गया था। उसने आशी के साथ ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ 4 माह ही गुजारे थे, लेकिन शायद अब वो 4 माह वो सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो बहुत मज़ेदार है, नावल बहुत मज़ेदार है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।